Okay, so we were speaking about the CV part. So you should first finalize your CV, right? One page, two page, font, how it should look like. I am not speaking on those things. Those are very basic things. I think Ghanshyam would be able to answer those queries. मतलब मुझे नहीं लगता कि that is relevant अभी के लिए in a 1 hour session. Second thing, now if the CV is final, the stories are done. That means हमारे एंड से तो प्रेपरेशन डन है एक बार के लिए. अब चाहिए कि ढूंढे कैसे, मतलब अपॉर्चुनिटीज कैसे ढूंढे, जॉब कौन देगा. ठीक है. सो इन दैट केस वी जनरली यूज नौकरी इज वन. डेफिनेटली एक तो नौकरी है. Second one is basically, let me tell you a figure, or not a figure exactly, but a fact. 70% of the job openings are not listed on any platform, whosoever it is. I'm coming to SAP course. Thank you, Hitesh. I forgot. So I'm coming to that point, right? 70% of the job openings are not listed anywhere, my friends. Anywhere means anywhere. कहीं भी नहीं. किसी भी कंपनी की वेबसाइट पे नहीं, किसी भी जॉब पोर्टल पे नहीं, लिंक्डइन पे भी नहीं, कहीं भी नहीं. तो अब पता कैसे लगेगा कि कहाँ है ये सब? Sirs and madams, you have to knock each and every door. So you need to learn how to do cold calling over email, over emails and over LinkedIn, most importantly. Now, how to do cold calling? Now, as far as cold calling is concerned, we generally write a personalized invite to people, right? I don't know how many of you have used that option, but you need to write personalized invite. It also a lot depends on how you write. If you are writing that, hi, my name is Tripti Sharma, and I am a recently qualified chartered accountant with CFA level 2. Kindly give me an opportunity. People might not consider, let me be very honest with you on your straight face. Why? Because they get a lot of requests like these. And do that person know Tripti? No. So why should that person give an opportunity to her? मतलब मैं जानता ही नहीं हूँ यार, मैं क्यों दूँ? Right? So basically, Akshay, I'm coming to it. Just let me finish my GAN. I'll take up all the questions. No problem. Right? So Tripti, you have to write it differently. Like you have to write what sort of work have you done, how you have impacted it, and you should say that the company should give me an opportunity to discuss my career prospects. Right? That way you need to write. For example, there's a student of mine, Shefali Sharma. You can check out all these names on LinkedIn. I am not, taking any fake names or making any stories. Shefali Sharma is working in Ola Electric. She is a second attempt chartered accountant with, very meager articleship exposure, normal articleship exposure in Jaipur, and she was able to, crack this particular job opportunity in Ola Electric. She started with as a finance controller, and in just a year, she was transferred to FP&A, which is a core finance profile. So that is possible, my friends. आपको क्या होता है, आपको आज ही सब चाहिए होता है. सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी है. We need everything today. What's your age? I feel इस ग्रुप का एवरेज एज है ना, मतलब 23-24 से ऊपर नहीं होगा. 25 ले लेते हैं यार, चलो 25 मैक्सिमम. 25 ठीक है यार. कब तक काम करूंगा? 60 साल में रिटायर होते हैं जनरली. आजकल तो और भी ज्यादा काम करते हैं लोग, बट अपन तो पुराने जनरेशन का बेंचमार्क ले लेते हैं 60 इयर्स. तो भी भाई 35 साल है. अगर आज ही सब मिल जाएगा तो आगे के 34 साल में क्या करोगे? मंजीरे बजाओगे? तो वेट start somewhere. I'm not saying compromise. No, please don't construe me as if I'm saying that you should compromise. I'm saying start somewhere. Take up jobs which are of the same profile, but in case if you are paid less, take it up. No problem. Please take it up. अगर देखिए, बहुत सिंपल सा रूल है. Profile is greater than brand, and brand is greater than salary. For students, this equation is completely opposite. CTC is greater than brand, and brand is greater than profile. Simple. ये है सिंपल कॉन्सेप्ट स्टूडेंट का. उसको सीटीसी से ऊपर कुछ दिखता ही नहीं है. वो पैसे देख के ही पागल हो जाता है. ओ पैसे, आधे लोग तो बिग फोर जाते ही इसलिए नहीं है. सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है क्योंकि उन्हें लगता है कि यार ये तो 8.5 लाख रुपए ही देते हैं हमें. बिग फोर वाले अपने लोगों को तो 10 लाख रुपए के करीब देते हैं, और बाकी फ्रेशर को 8.5-9 के करीब दे देंगे. थोड़ा सा पुश करोगे तो 9 दे देंगे. अगर आपने कोई काउंटर ऑफर दे दिया, अब आपकी नेगोशिएशन स्किल पे है तो 9 भी दे देंगे, चलो. बट जनरली नहीं देते, वो जनरली नहीं देंगे. 8.5 पे क्लोज करेंगे. अब मैं आपको बताऊं, एक बिग फोर का जो ग्रोथ रेट है, दैट इज समवेयर अराउंड 10 to 20%.
ऑन एन एवरेज 15% तो मान ही लो आप। और एक इंडस्ट्री का बात कर रहा हूं मैं, कोई भी ले लो इंडस्ट्री, आप एल&टी ले लो, कोई कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कोई भी कंपनी ले लो, कोई भी इंडस्ट्री ले लो आप। हाँ, कुछ इंडस्ट्रीज जैसे आईबीज का ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट बैंक्स का ज्यादा है ग्रोथ रेट, उसमें गोल्डमैन में ज्यादा पैसे मिलेंगे, बार्कलेज में ज्यादा पैसे मिलेंगे, चाहे वो प्रोफाइल बैकएंड का ही क्यों ना हो, चाहे वो प्रोफाइल बैकएंड का क्यों नहीं हो। बैकएंड मुझे नहीं पता आपको ये फ्रंट टीयर, मिड टीयर और बैक टीयर का पता है कि नहीं पता है, बताया होगा मेरे हिसाब से। हमें ज्यादातर, हमें या तो अगर बहुत हाथ पांव मारेंगे तो मिड टीयर मिलेगा, अदरवाइज लोअर टीयर मिलेगा। और वो मिड टीयर के लिए भी, मेरी एक स्टूडेंट है सुप्रिया काबरा, अगेन शी इज इन जेपी मॉर्गन, शी इज इन मिड टीयर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, वो सीए है, वो उसने कोई सीएफए कुछ नहीं कर रखा, नॉर्मल सीए। नॉर्मल का मतलब, हाँ उसका प्रोफाइल थोड़ा अच्छा इसलिए क्योंकि वो आईपीसीसी रैंकर है और फाइनल में क्लोज टू रैंक मार्क्स थे उसके, लेकिन रैंकर नहीं है फाइनल के। यू कैन चेक आउट, सुप्रिया काबरा इज इन जेपी मॉर्गन नाउ। ठीक है, तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, सो आपको हमेशा प्रोफाइल्स पे फोकस करना है, प्रोफाइल पे। ठीक है, अगर मान लो प्रोफाइल नहीं मिल रही है तो ब्रांड पे फोकस करना है, एक अच्छा ब्रांड कम पैसे दे। एक मेरा ही डाउट था इसमें, आप जो इंडस्ट्री वाला बोल रहे थे, तो बिग फोर में बोले 10 से 20% होता है, हाँ, तो इंडस्ट्री में इंडस्ट्री में समवेयर अराउंड कितना, 5 to 10%, इंडस्ट्री में क्या रेट ऑफ ग्रोथ है लॉन्ग टर्म में? 5 to 10%, 5 to 10% 10%। generally, but certain industries have a better, paying capacity and rate. तो बेसिकली ठीक बिग है, फोर आपका टेक ओवर कर लेता है लॉन्ग टर्म में, अगर कोई यहाँ पर टीके तो Big ज्यादा Four, बेटर है sir, बिग it फोर में। takes 3 years. It takes only 3 to 4 years to reverse this gap. 3 to 4 Someone who is in HUL, for example, will start at 30 lakhs. ओके। ठीक है, will start at 20 to 30. अगर रैंकर है तो 30 और फर्स्ट अटेम्प्ट है तो 22, हाँ 23 पे स्टार्ट करेगा। हाँ हाँ। ठीक है, वो ग्रो करेगा स्लोली, ओके स्लोली। ओके एक बिग फोर वाला 5 साल में उतना पहुंच जाएगा ओके ओके ग्रेट। आराम से। हाँ, ये चीज अच्छा है। और 10 साल में तो कंप्लीटली रिवर्स हो जाएगा ये। तभी अगर ये आप रैंक 10 होल्डर साल, जो, हाँ तभी ये रैंक अगर होल्डर आप, जो 1-2 साल ही रहता है, मैरिको ये सब में 1-2 साल क्या छोड़ देता है वो लोग, हम देखा एक सर दो ऐसा है, कंसल्टिंग ले लो, आईबी ले लो, हाँ एफएमसीजी में फिर भी रुक जाते हैं लोग, हाँ लेकिन हाँ। उसमें भी आप कहते तो होगा, कम होता है उसमें, लेकिन आप देखना आईबी में हम्म और कंसल्टिंग में, हम्म, मैनेजमेंट कंसल्टिंग में लोग 1-1.5 साल में छोड़ देते हैं, प्रेशर ही नहीं बहुत प्रेशर है। ले पाते, ओके। बिग प्रेशर ही फोर नहीं में, ले पाते। बिग फोर फिर भी ठीक है। हाँ, बिग फोर वाला, बिग फोर में भी कम नहीं है प्रेशर, हम वहां तो पे भी भी है। मतलब इक्वली गुड है, हम्म। इक्वली गुड है, इक्वली गुड है। और राइट, लक्ष्मी क्या सरस्वती के प्रेशर। हिसाब से सही है, मतलब बैलेंस में चलता है, लक्ष्मी सरस्वती के हिसाब से ठीक ठाक है, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए। अच्छा, ये वर्ड्स ये तो मैं मेरा नहीं खुद यूज का भी, करता हूँ, लक्ष्मी सर। एक्चुअली मेरा एक्चुअली दोनों में डाउट मेरा भी रहता था कि इंडस्ट्री बेटर है कि बिग फोर बेटर है लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये सर आपके लर्निंग साथ। पर्सपेक्टिव से बिग फोर बेटर है। अब आपको करना ये चाहिए, अगर आप फ्रेशर हो, आप 2 साल बिग फोर में निकालो, 2-2.5 साल प्रोफाइल बिल्ड करो, उसके बाद मूव ऑन टू सम अदर इंडस्ट्री। इंडस्ट्री। क्योंकि अगर आप कभी भी 3 से 4 साल वाला जॉब डिस्क्रिप्शन देखोगे तो उसमें क्लियरली लिखा होता है बिग फोर हाँ। कैंडिडेट्स प्रिफर्ड, क्लियरली। मतलब, तो ये क्या पागल तो है नहीं इंडस्ट्री वाले जो लिख रहे हैं ना। बिग फोर कैंडिडेट्स प्रिफर्ड, उन्हें पता है, इन्हें काम करना आता है, टेक्निकली भी साउंड है। दूसरा, प्लीज बी पेशेंट। 6-6 महीने में जॉब चेंज कर लेते हैं लोग, हाँ 6 महीने में बिग फोर छोड़ दी। अरे सस्टेन देयर सर, इट हम्म, इज इजी टू क्विट, इट इज ऑलवेज इजी टू क्विट, but it is difficult to sustain. Hang on, hold on to that job, hang in there, तभी होगा, वरना नहीं होगा। Is it okay for you to work in KPO? No, no सरिता, no। अगर आप मेरे से पूछ ही रहे हो तो नो। ये सब अब अगर बेकार कुछ है। नहीं मिल रहा है, कोई मजबूरी है, पीडब्ल्यूसी, उससे बेटर तो एसबीसी, फिर बिग ईवाई, फोर के, जीडीएस बहुत बिग देता फोर, है लोग आपका। नहीं नहीं, वो केपीओ भी, मतलब उसको केपीओ नहीं कहेंगे हम, केपीओ का मतलब हुआ जैसे जेनपैक्ट। ओके हाँ, वो तो ठीक है, बेकार है। कंसेरो ग्लोबल, हम्म। कंसेरो ग्लोबल, ओके। या हेज फंड अकाउंटिंग कंपनीज है आजकल, सिटको, विप्रो का एक और डिवीजन आ गया है, अकाउंटिंग कर रहे हैं, वो केपीओ है यार, उसमें नहीं। ईवाई मैं वही जीडीएस कह रहा था कैसा कि है अगर आपका, आपको ईवाई जीडीएस ये कैसा है ईवाई ऐसे? जीडीएस सही है, सही है। मैं तो आपको कहूंगा कि आप ईवाई इंडिया ही प्रेफर कीजिए, बट ईवाई जीडीएस अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है, अगर आपके मल्टीपल अटेम्प्ट्स हो चुके हैं, आपका कम्युनिकेशन स्किल वीक है, आपका आर्टिकलशिप एक्सपोजर भी वीक है, देन नो, विप्रो इज नॉट केपीओ माय फ्रेंड, बट विप्रो का एक डिवीजन है जो अकाउंटिंग का काम करता है। ठीक है, हर कंपनी के मल्टीपल काम है, विप्रो पता है आपको एफएमसीजी कंपनी भी है, मेरे 2 स्टूडेंट वहां पे भी हैं, विप्रो एंटरप्राइज। विप्रो एंटरप्राइज इज अ एफएमसीजी ऑर्गेनाइजेशन, बल्ब्स बनाते हैं वो स्विचेस बनाते हैं, वो साबुन बनाते हैं, वो डिटर्जेंट बनाते हैं, ऑयल बनाते हैं, वो एफएमसीजी कंपनी है। इस बार अभी भी हर बार ऑफ कैंपस हायर करने लग गई है पिछले 2 टाइम से।
मेरे स्टूडेंट्स वहां पे क्रैक भी कर चुके हैं। अदिति गुप्ता एंड नंदिनी सिंगल ने तो ज्वाइन भी किया, अदिति ने तो ईवाई का M&A टैक्स ज्वाइन किया। तो ऐसा है, वो ऐसा नहीं है। मतलब टू आंसर योर क्वेश्चन स्पेसिफिकली, KPO you should not be your first preference for very simple reason कि लर्निंग पर्सपेक्टिव से खराब है। अगर KPO टाइप में ही जाने की इच्छाएं हो तो फिर किसी बिग 4 का ग्लोबल ज्वाइन कर लेना चाहिए। अब कुछ लोगों का होता है कि यार नहीं, मुझे ना सिर्फ पैसे से मतलब है, प्रोफाइल और सही है, मतलब मुझे कुछ गलत नहीं लगता उसमें, उनका अपना पर्सपेक्टिव है, वो कर सकते हैं ज्वाइन, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, राइट। तो आप जाके बिग 4 का ग्लोबल ज्वाइन कीजिए। अच्छा, बिग 4 के अलावा भी RSM एस्ट्यूट, RSM ग्लोबल, RSM का ग्लोबल है, मजार्स का ग्लोबल है, विच इज डूइंग वेरी गुड। GT का BDO तो अभी हायरिंग भी कर रहा है, और इसका BDO का राइज है, BDO राइज, वो भी एक ग्लोबल यूनिट है। दे आर डूइंग एक्सट्रीमली गुड, सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर आपको करना हो तो आप इनमें भी ट्राई कर सकते हैं। मतलब बिग 4 के तो है ही है, USI, SDC, KPMG ग्लोबल और EY GDS, वो चार तो है ही। उसके अलावा GT, RSM और मजार्स और BDO, ये 4 और हैं। तो बिग 4 ही क्यों जाते हो, बिग 20-30 में फोकस करो ना भाई। और अगर आप मेरे से सुनना चाहते हो, मैं कहूंगा आप एक मिड साइज फर्म ज्वाइन करो। कहाँ पे? अपने शहरों में नहीं, मुंबई में या बैंगलोर में, चलो कुछ हद तक दिल्ली और गुड़गांव भी ले लेते हैं, एक टू सम एक्सटेंट। गो एंड जॉइन अ गुड मिड साइज फर्म जहां पे अच्छे ऑडिट्स हो, असाइनमेंट्स हो। उसके बाद आप कुछ साल, 1 साल वहां काम करो, आपकी जो अटेम्प्ट वाला प्रॉब्लम है ना, वो बिल्कुल नलिफाई हो जाएगा। बिकॉज आफ्टर ईयर nobody asks the attempt, they ask your experience. Forget 1 year, merely after 6 months nobody asks for attempts. वो सिर्फ कैंपस में या कैंपस से पहले थोड़ा सा इशू आता है कभी कभार, ठीक है। ACCA की बात कर रहे हैं सर, चित्रांश, आई एम कमिंग टू योर क्वेरी, आई एम कमिंग टू ऑल क्वेरीज, डोंट वरी, मैं कहीं नहीं जा रहा, मेरे पास बहुत टाइम है आज, मेरे पास कुछ नहीं है करने को अभी, ठीक है। वॉक करता मैं अभी रात को तो मैं बहुत, आई विल आंसर ऑल योर क्वेरीज, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई हैव रीच्ड होम, सो लेट मी गेट टू माय डेस्क, टिल देन घनश्याम यू प्लीज टेक ओवर। मेरे को बस 2 मिनट ऊपर मतलब अपने रूम में जाने दो, आई एम टेकिंग इट फ्रॉम देयर, आई एम म्यूटिंग एंड पुटिंग माय वीडियो ऑफ। So hi, sorry for this interruption. So we were speaking about whether to go for KP or not. No, should not be a first preference. Definitely you should prefer a good profile. In case if you are quite inclined to these jobs, then go for Big Four's global practice firms, Big 10, Big 20, Big 10 global practice firms. Or else, if you really wish to work in a good profile, then prefer to work with a mid-tier 2 firm, or a firm with decent profile who might pay you less but still will help you improve your profile at least for future. Okay, so we were actually speaking about how to look for jobs. So first, finalize your CV, prepare stories behind
दैट CV. ज्यादा जॉब्स नहीं है पोर्टल पे, so what you should do is you should write cold calling mails नहीं, cold calling messages. To whom is the question. What you people do, you people write to someone who is in the lower tier, like the lower tier of hierarchy. 0 to 4 years of experience होगा जिसके पास, 5 years experience होगा maximum. मैनेजर तक लिखते हो आप, उसके ऊपर नहीं लिखते. And that's the reason you do not get response. That's the biggest reason you do not get response. You should write to CEOs, CFOs, MD, senior managers. अगर मतलब बहुत ही मजबूरी हो तो मैनेजर, अदरवाइज मैनेजर भी नहीं, सीनियर मैनेजर के नीचे लिखना ही नहीं. ठीक है, व्हाट टू इंक्लूड इन अ फ्रेशर CV. सो आदिल, आई विल कम टू दैट, आई एम कमिंग टू दैट. सो व्हाट यू शुड राइट, लेट्स से मैं अभी शेफाली की बात बता रहा था जो ओला इलेक्ट्रिक में है. लेट्स से इफ आई वांट टू राइट टू समवन इन ओला इलेक्ट्रिक, हाउ शुड आई राइट? वेरी सिंपल. देयर आर 2 ways of writing. Now Ola Electric is a new company. It's a very novel business idea, नया business idea है. So I can write that e-mobility is the future and I want to be a part of this revolution. And I think Ola Electric will be the torch bearer in this particular revolution. Hi, my name is Pawan Bhatia and I'm a recently qualified chartered accountant with an exposure in finance, accounting and taxation. Looking forward to explore career in finance. I can be that specific or simple. अगर मेरा कोई ऐसा preference नहीं है, I can write looking forward to explore career with Ola Electric. Kindly give me an opportunity to discuss my career prospects with the organization. Because personalized invite में LinkedIn पे सिर्फ 300 character ही मिलते हैं लिखने को. So we have to be very specific in what we write. This is a pitch. This is simply a business pitch. जैसे आप business pitch करते हो किसी investor को, बिल्कुल वैसे आप pitch कर रहे हो एक job के लिए. सिंपल. आपको जो भी जॉब चाहिए, FP&A चाहिए, ट्रेजरी चाहिए, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में 2 पार्ट्स होते हैं, रिसर्च अलग होता है. जैसे कैपिटल रेजिंग एक पार्ट है और M&A एक पार्ट है. इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के 2 पार्ट्स होते हैं जनरली. ठीक है, मुझे किस साइड जाना है? आप M&A की भी बात करें तो स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग अलग है, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस अलग है, वैल्यूएशन एंड बिजनेस मॉडलिंग अलग है, उसमें भी फर्दर डिविजन है. ठीक है, मुझे कहां जाना है? अगर एक CA की बात करें तो उसके लिए सबसे ज्यादा रीचेबल, सबसे ज्यादा इजीली रीचेबल FDD का प्रोफाइल, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस का प्रोफाइल. उसके लिए बिजनेस फाइनेंशियल मॉडलिंग वाला, वैल्यूएशन वाला प्रोफाइल थोड़ा डिफिकल्ट है, जब तक या तो वो एक्स बिग 4 हो या फिर उसने कुछ वैल्यूएशन का कोर्स किया हो, उसने फाइनेंशियल मॉडलिंग का कोई कोर्स किया हो. राइट. तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे करें. तो हमको नौकरी पे तो रहना ही रहना है, मतलब जॉब पोर्टल्स पे तो सर्च करना ही करना है. इसके अलावा हमें लिंक्डइन पे भी कोल्ड कॉलिंग करनी है. हमें रोज हम कैसे कोल्ड कॉलिंग कर सकते हैं, उसका भी तरीका है. तरीका ऐसा है कि या तो हम स्पेसिफिक प्रोफाइल वाइज कोल्ड कॉलिंग करें कि हम FP&A लिखे, उसमें लोग ढूंढें. ठीक है, उसमें भी ऐसे फिल्टर्स आते हैं. टाइटल में सिंपल जाके लिखिए ना, मैनेजिंग डायरेक्टर या MD लिखिए, या फिर सीनियर मैनेजर लिखिए. सिंपल लिखो, आप फिल्टर लगाओ, ऐसे बहुत सारे लोग आ जाएंगे जो FP&A डिवीजन में MD है या सीनियर मैनेजर है. विल राइट टू देम. अब अगर ऑर्गेनाइजेशन पुरानी है, फॉर एग्जांपल मैं HUL में किसी को लिख रहा हूं, अब मैं अगर लिखूंगा HUL इज वन ऑफ द लार्जेस्ट FMCG ब्रांड, दैट इज नॉट मेकिंग एनी सेंस अगर मैं उस कोल्ड कॉलिंग मैसेज में ऐसा लिखूंगा, क्योंकि उसे भी पता है यार इट इज डेफिनेटली इट इज. ओला में ओला की बड़ाई कर रहा था, बट HUL में HUL की बड़ाई नहीं करूंगा. अब मैं क्या करूंगा, उस आदमी की बड़ाई करूंगा जिसको मैं लिख रहा हूं. मैं जाऊंगा उसके लिंक्डइन में प्रोफाइल को पढ़ूंगा, समझूंगा, अबाउट सेक्शन पढ़ूंगा और फिर लिखूंगा. ठीक है, दिस वे. मतलब थोड़ा मेहनत है यार. मैं जो पढ़ाता हूँ, I don't have a straight jacket formula of teaching. I make you work. I make students work. Until they do not work, they don't get their desired profiles. We push, हम डंडा मारते हैं, मतलब करो 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 करो. We follow up. We enable them to write. We make them independent. This is what we do. Okay, moving ahead. So LinkedIn पे लिखिए. अच्छा, बहुत सारे यहाँ पे ग्रेजुएट्स भी थे. ठीक है, ग्रेजुएट से रिक्वेस्ट ये है कि अगर वो सिर्फ ग्रेजुएट से, तो वो एक काम कर सकते हैं, नौकरी और ये तो है ही, मतलब इस तरह से कोल्ड कॉलिंग तो वो कर ही सकते हैं. बट बहुत सारी आजकल है ना इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज है. इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी जैसे अपवर्क पे मिल जाएगी, इंटर्नशाला पे मिल जाएगी. ठीक है, इवन freelancer.com, इन पे भी कई बार इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज आती है, वहां पे मिल जाएगी. वैसे अपवर्क इज वेरी गुड. हायरेक्ट अच्छा है. एक और कंपनी है जिसका नाम है रैंडस्टैड, RANDSTAD, रैंडस्टैड. ठीक है, वो क्या करती है, वो अपने पेरोल पे हायर करती है और
ग्लोबल ब्रांड्स के साथ काम करने का मौका देते। ठीक है, तो ग्रेजुएट्स के लिए, स्पेशली ग्रेजुएट्स के लिए, क्योंकि ग्रेजुएट्स कहेंगे यार आप सर सिर्फ प्रोफेशनल्स की बात कर रहे हो, हमारी तो बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो नहीं नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है। मैं चाहता हूं आपकी भी बढ़िया जॉब लगे, तो या तो आप कोल्ड कॉलिंग कीजिए, नौकरी के थ्रू कीजिए, या रैंडस्टैड है, अपवर्क है, हायरेक्ट है, इनके थ्रू, या इंटर्नशाला है, इनके थ्रू अच्छी इंटर्नशिप कीजिए। एवरीवन वांट अ गुड इंटर्न, एंड व्हेन यू विल हैव गुड ब्रांड नेम इन योर सीवी, इट विल बी इजियर फॉर यू टू पिच। सिर्फ लिखना कि मैंने एमकॉम करी है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से, नहीं चलेगा। एक्सेप्ट डीयू, मतलब बाकी की वैल्यू थोड़ी कम है, सीधी बात है। ठीक है, इवन बॉम्बे यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी में भी ऐसा सीट नहीं है कि डायरेक्टली मिल जाए। सिर्फ डीयू एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां से ये पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। तो हम क्या करें? हाउ शुड वी लुक डिफरेंट? लेट्स डू इंटर्नशिप। सेम गोज फॉर पीपल हु आर व्हाट, सीएफए। सीएफए वाली मैडम थी, क्या नाम, तृप्ति मैडम थी शायद, क्या नाम था, तृप्ति, ओके। So Tripti, you are at level 2, so you qualified level 1 recently. So there is one more student of mine who did it, Nihar Khandelwal. He was with HSBC. उसने कर लिया level 1। अब यार तृप्ति, ऐसा है, बहुत सिंपल सी कहानी है कि CFA में भी है ना, भीड़ भड़कता बहुत बढ़ गया है। मतलब I'll be very straight to your face, right? अब क्या है कि जितने भी CAs हैं उन सबको CFA करना है। मतलब उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उनको बोलो ऑडिट कर लो तो उनको लगता है जैसे क्लरिकल काम करा रहे हैं। मैं कहता हूं आप एक बार जाके ऑडिट करके दिखा दो, किसी भी बिग फोर में चले जाओ, वहां के ऑडिट डिपार्टमेंट में चले जाना, आप 6 महीने वहां सस्टेन करके दिखा दो, मैं मान लूंगा आप 6 महीने सिर्फ। नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल है करना। अच्छा, वो ऐसा नहीं है कि वर्किंग पेपर ही बनवाते हैं, ऑब्वियसली 6 महीने वर्किंग पेपर ही बनवाएंगे यार तुमसे, क्योंकि तुम एक छोटी फर्म से आए हो, तुमको वो भी नहीं आता, तो पहले वो तो सीख लो। That's the very basic of doing that job, right? So coming back to your, coming back to your case, since you are pursuing CFA, I would request, if you really want to stand out of the crowd who is doing CFA now these days, please pursue internship. There are a lot of virtual internships available now. As a CFA, कहाँ काम करना चाहते हो? आपका क्या aim है? Why are you doing CFA? Like, if I ask you specifically. स्पेसिफिकली मेरा इंटरेस्ट इक्विटी रिसर्च में है। ग्रेट, बहुत बढ़िया। बट हाँ, एंड ऑल्सो आई हैव डन वर्चुअल इंटर्नशिप फ्रॉम इनसाइड शेरपा सिटी बैंक रिलेटेड, बट आई डोंट नो हाउ मच वैल्यू दैट एड्स। You don't become judge jury, in your case. Let others do that judgment part for you. You keep pursuing such internships. Now can you go tell to me other right, portals? okay, yeah, no, I will not tell you portals, but I will tell you the name of the organization. Why don't you go to Anand Rathi, DSP, BlackRock, and write to their CEOs directly that I am a CFA level 2 candidate. I just want to pursue an internship in the equity research department of your organization, or maybe a debt fixed income research department in your organization. हर देखो, जॉब देने में सब रोते हैं, लेकिन इंटर्नशिप देने में कोई नहीं रोता, क्योंकि वो फ्री होती है। आप बोलोगे ना इंटर्नशिप करा लो तो दे देंगे, बोले ठीक है फ्री का यार काम करने को मिल रहा है, दे दो। और आप लिखोगे कि आई हैव दैट क्रेडेंशियल, दे विल ऑफर यू दैट पोजीशन। डोंट राइट टू जस्ट 2, राइट टू एटलीस्ट 20, बहुत सारी हैं। राइट टू हेम सिटी। सो कहां से हो आप? फ्रॉम व्हिच सिटी डू यू बिलोंग टू? आई एम बेसिकली फ्रॉम जयपुर, राइट नाउ आई एम लिविंग इन गुड़गांव। Oh, you are from Jaipur. I am also from Jaipur. Hi. Hi. I don't know whether you have heard about me or not, but तृप्ति, जयपुर से आप तो हेम सिक्योरिटीज आप जानते हो कि ऑल इंडिया रेडियो के सामने ऑफिस है, गणपति प्लाजा के पास में। Go and reach out to them. Write to Anand Rathi. Write to अरे why don't you write to Grow? Why don't you write to Zerodha? Why not? Okay. Why not startup? Why sure. not? Right? And there are others also who must be offering internships like this. Future First campus में भी आती है CA के। CA की campus में भी आती है। Write to them. Write to at least 50, executives from these firms, these organizations, and see if something is happening or not. It will surely help you out. Because अब तो सब CFA कर रहे हैं यार, प्रॉब्लम वो हो गई है। तो मतलब आज से 3 साल बाद, 2 साल बाद, जैसे अभी CA हैं बहुत सारे, CFA भी होंगे। मुझे पता लग गया है कि CFA वाले आप थोड़ा पेपर टफ कर रहे हैं, वो अच्छी बात है, वो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ निकल जाएंगे, क्योंकि इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, वो पेपर निकालने में सबसे आगे इंडिया वाले।
और अगेन यहाँ पे एक टैलेंट पूल जमा हो जाएगा, और तृप्ति इंडिया में फ्रंट एंड जॉब नहीं है, और ये आप अभी लिख लो, नहीं है, पहले बता रहा हूँ आपको, आप परस्यू कर रहे हो ना अभी, तो ये पहले बता देता हूँ कि फ्रंट एंड जॉब्स तो नहीं है, मिड ऑफिस जॉब है जो आपको मिल जाएगी बड़ी आराम से सीएफए करने के बाद, लेकिन उसमें अगर आपके पास इंटर्नशिप होगी तो आपको बहुत फायदा होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा। आप एक काम और करो, व्हाई डोंट यू राइट योर रिसर्च पेपर्स, आईसीआईसीआई, अच्छा, not only just broking houses, you can also reach out to ICICI Wealth, HDFC Wealth, AMCs, asset management companies. Why not? Right? Good portfolio managers. Look for good. Do one thing. सेबी की है ना रजिस्टर्ड, जितने भी ब्रोकर्स हैं उनके पास लिस्ट होती है, सेबी की वेबसाइट पे मिल जाएगी आपको रजिस्टर्ड इनकी लिस्ट। यार कम से कम 50-60 मिल जाएंगे आपको बड़े। लिखो ना, आपके पास बहुत कुछ है लिखने को, राइट इट डाउन, लिखो आप कि भाई अच्छा क्लियरली आर यू इन अ जॉब? No, I'm not working right now. I'm preparing for my exam. It's in 3 months now. So you are just a CFA or a CA/CFA? CA, I've completed my chartered accountancy. I am When? doing CFA. When? It's 6 months back in November. Okay, November okay. 2020. So that means you are a recently qualified CA, right? Yeah. Oh, that's nice. That's nice. Great. So you did not took up any job. You said I'll only work as a CFA. Actually, I went into the campus. I got a job in PwC SDC. Then there was some problem regarding date of joining, and I was not available then. Then I had to switch it off. Then I took a break, and I started focusing on CFA level 2. And since then, a lot of things have That's been even happening. better. Why do you ask for virtual internship? Then I think you should ask for a full-time internship where you can be on the campus and in their premises and work. Why not? That is even a So better learning. internship sounds a good idea, right? Please go for Did it. not I am study. telling you honestly, you should go for it. And this is not just for you, for others too. Like there were people who were looking for IB roles. There were people who were looking for finance profiles. Why not? You should pursue internships as many as possible. Even if it is a virtual internship, that's completely fine. Completely fine. Having little experience is better than having no experience. Okay, so it's a market where you are evaluated. यार अगर मुझे एक सब्जी अच्छी लग रही है which is looking fresh, I'll take it up. Same goes for the candidate. That candidate has extra skill in comparison to other candidate. I'll take that up. क्योंकि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में तो सब बराबर होने वाले हैं, सीएफए बहुत सारे निकलेंगे जैसे कि सीए बहुत सारे निकले, so better take virtual internship. That's simple suggestion. Same goes for people who are graduates or even ACCAs. Now there were ACCAs too. Now as far as ACCA is concerned, there are a lot of for ACCAs, KPOs can be a decent option. And secondly, even there are a lot of banks, investment banks, who have a back-end operations in India. For example, Barclays, Macquarie, Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, all of them have back-end operation. Sometimes they do consider ACCA. Even Big Fours consider ACCA in certain profiles. So people who are pursuing ACCA or is a ACCA here or are ACCA here, please look for jobs that way. There's one more way of determining where to get a job. You do one more thing. Use LinkedIn. LinkedIn is a treasure. It's a khajana. It's a treasury of information. Just write ACCA in the search box. Search for people. बहुत सारे लोग आएंगे जो ACCA होंगे, कहीं ना कहीं काम कर रहे होंगे. Look where are they working. You'll get to know कि इन organization में भी ACCA काम करते हैं. And reach out to those people through cold calling. Simple. अच्छा, So it's mainly not a we see one-day ACCA process. in EY only. Sorry, sir. Mainly we see ACCA students in EY only, sir. Fine. EY में लेते हैं, हाँ ठीक है यार, no problem. That's ऐसा तो होगा नहीं सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन ले रही है, और भी जगह लेते होंगे. और अगर नहीं लेते तो फिर आप ACCA क्यों कर रहे हो, मेरा वो क्वेश्चन है. I think you should drop ACCA and do something else. It is very simple. If that particular qualification is not fetching me a job, there is no point doing it. There's no point doing it. I really don't know. Sorry to say, but there are a lot of trainers. आजकल गुरुजी भी बहुत सारे हो गए. LinkedIn पे भी बहुत सारे गुरुजी हैं. YouTube पे भी बहुत सारे गुरुजी हैं. And most of the gurujis are selling CPA course, CFA, ACCA.
Now you tell me, why are you pursuing CPA here in India? Why is an individual pursuing CPA in India? Let's say tomorrow I'm a chartered accountant. I move to US or let's say Mexico or Canada, and I say I'm an Indian chartered accountant. Give me a job. They'll say no, we'll not consider you. We'll go for a CPA, because in US or Canada or Mexico, CPA is the qualification as a prerequisite for them to get a job there. It is not Indian CA. Same goes for India. If there is a job for a chartered accountant, why would they prefer a CPA over CA? You tell me that. Obviously they'll prefer, a local qualified individual, जिसका यहाँ पर, जिसको कंसिडर किया जाता है, जिसको मतलब अफिलिएटेड है वो हर जगह से, क्यों कंसिडर करेंगे सीपीए? मुझे समझ नहीं आता. सेम गोज फॉर एसीसी. ACCA is for people in Europe majorly who want to work in Europe. ठीक है, तो ACCA अगर आप मतलब बेच रहे हैं, ट्रेनर्स भी बेच रहे हैं, टीचर भी बेच रहे हैं, स्टूडेंट खरीद भी रहा है, मैं उसमें कुछ बोलना नहीं चाहता ज्यादा. सर आप थोड़ा ड्यू डिलिजेंस कीजिए, थोड़ा रिसर्च कीजिए, तब समझ में आएगा कि इज इट अ गुड कोर्स और नॉट. बट एज फार एज ACCA इज कंसर्न, हाँ जॉब्स हैं. मतलब मैं इतना कहना चाहूंगा कि डेफिनेटली जॉब्स हैं. तो जितने भी ग्लोबल प्रैक्टिस है बिग फोर के, उसमें आप लिख सकते हो, वहां पे कंसिडर करते हैं. इन्वेस्टमेंट बैंक के बैक एंड प्रोफाइल में कंसिडर करते हैं, और इवन इंडिया यूनिट ऑफ बिग फोर्स भी कुछ कुछ कंसिडर कर लेते हैं. अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन हो, क्योंकि देखिए मैं हो, घनश्याम जी हो, या कोई भी कोच हो, हमारे पास कभी भी 360 डिग्री फुल नॉलेज नहीं हो सकती, बिकॉज इट इज अ वेरी इवॉल्विंग मार्केट. इट कीप्स ऑन चेंजिंग इन एवरी 2-3 मंथ्स. तो सारा नॉलेज नहीं हो सकता 1 या 2 या 5 लोगों को. हमें ज्यादातर नॉलेज है बट पूरा नहीं हो सकता. तो आप क्या करो, आपके पास एक रिसोर्स है लिंक्डइन, वहां पे जाके ACCA के लोगों को ढूंढो जिसने ACCA कर रखा है. कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में, पता लग जाएगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन में भी ACCA लेते हैं. रीच आउट टू दोज ऑर्गेनाइजेशंस, व्हाई नॉट. सिंपल. यार जितने भी अकाउंटिंग या फाइनेंस अकाउंट कंट्रोलरशिप वाले प्रोफाइल है, इसमें IFRS चाहिए, उसमें ACCA को ले लेंगे, क्या प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत ही नहीं आ रहा उसमें. तो CPA को भी ले लेंगे, ACCA को भी ले लेंगे, दोनों पढ़ के आते हैं सेम चीज. हाँ, अब कुछ का प्री रिक्विजिट हो सकता है कि हमें CA ही चाहिए, तो अब उसका कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज दैट्स अ local national qualification, and this is very obvious, and this is very justified too, that hiring a CA over ACCA or CPA is completely justified in India at least. In US no, in Canada no, in Europe no. Okay, I am taking questions. मैं देख रहा हूँ चैट बॉक्स में क्वेश्चन आ रहा हूँ, एक एक पे आ रहा हूँ. ठीक है, तो हमको कोल्ड कॉलिंग करना है, हमें इंटर्नशिप करनी है. इंटर्नशिप करना बहुत जरूरी है, वर्चुअल कर लीजिए. अगर आप काम कर रहे हैं, इफ यू आर एम्प्लॉयड समवेयर, प्लीज टेक अप वर्चुअल इंटर्नशिप. इफ यू आर नॉट वर्किंग एनीवेयर, like Tripti, you're just preparing for a particular examination or a qualification, then please take up full-time internships. That surely makes your CV very very heavy. So Tripti, कहाँ से आर्टिकलशिप करा आपने जयपुर में? So it's a firm called Rajvanshi and Associates. Oh, that's nice. I had few students from there. Gaurav Sharma, there was one student. Abhinav को तो मैं जानता ही हूँ. अभिनव तो friend है. Abhinav Rajvanshi is a friend. Yeah. Oh. I know everyone. मैम HR त्रिकाया का नाम मुझे नहीं पता आपने सुना है कि नहीं, बट जयपुर में तो काफी लोग जानते हैं. So Abhinav is a friend. Okay. तो राजवंशी में तो forensic का भी बहुत अच्छा काम. Yeah, I have not done forensic. I have done bank audits. I have been to Autopal, which is a listed company. Autopal. So I've done that. I've done central stat audit of bank and IDBI bank stat audits. Okay, so it's majorly banking. So fine. I think you should concentrate on CFA. Yes, Akshay has raised his hand from a very long. Yes, Akshay. Hello, sir. हाँ जी. Sir, I want to ask a few things. First of all, I'm a recently qualified chartered accountant. So I have my audit exposure as a audit exposure, and I was also a paid assistant in Agarwal Sarabian company in a core audit or taxation. But my interest is in private equity, IB, and wealth management structure. So I want to know, how can I apply for this? Great, good question. My resume got shortlisted for many of Big Fours for audit profiles, and because your profile not a single time in the in for private equity and analyst. नहीं होगा भी नहीं sir. And my second question is that is it necessary for me to start my CFA? Is CA sufficient for it? A very very good question. A fantastic question. The second part was really fantastic to ask. It's a fantastic question to ask. Great.
So to answer your first question, that you have exposure in audit and taxation and your CV is not getting shortlisted in core IB profiles, for very simple reason. Tomorrow Tripti and Akshay both will apply for the same position. Tripti's CV might get shortlisted because she is CFA level 2. For these profiles, there is a specific qualification required, which is CFA. Now, where did you apply is another question. Kahan apply kiya tha? In which organization I had did you applied apply? for Anand Rathi, so they didn't consider my CV for it. And Great. even one of the one firm in they also in the Gurgaon for the private equity. I reach out so many person in the LinkedIn to refer my CV, but no one is shows an interest in my CV Because there might be multiple problems here. Your CV must be only speaking about audit and tax. That could be one, right? So if it only has audit and tax, वो आपको equity research में या even venture capital firms So what में या should I let's say, do? I do some other courses for it? yes, you should at least first you need to write that you know Black and Scholes model, you know valuation of security, you know valuation of business. I'm not saying you should write that I have done it. Simply write academically exposed to these concepts. You have you have done research on 3 sectors. Do any research on 2 sectors, write a report, or just see, do some analysis on that part. Pursue, technical and fundamental analysis, course on fundamental technical analysis from somewhere, right? At least write that I know fundamental technical analysis. I am aware of the recent market updates. I have read reports. I have prepared 2 reports, on these 2 sectors or on these 2 companies. Your CV should speak all these things, should mention all these things, and not audit and taxation. That's what I was saying. आप लोग एक ही CV हर जगह लगाते हो, इसलिए रिजेक्ट होता है वो, क्योंकि वो रेलेवेंट एक्सपीरियंस ही नहीं है उसमें यार, वो क्यों कंसीडर करेंगे? अच्छा, now to answer second question of yours, which is CA sufficient? For most of the profiles, for most of the, even for finance profiles, CA is sufficient. However, research driven profiles like investment banking profiles, generally, since now people have started pursuing CFA and these companies have option to hire CFAs as well, like a CA CFA, because of their qualifications. And at fresher level, there is nothing much to show except qualification. That's why they are hiring someone who has a CFA qualification or even at level 2. Earlier, let me tell you, there was one colleague of mine. He did CFA level 1 and he was hired by EY Business Advisory Service. He was just level 1 qualified. But today, if a level 1 qualified goes and asks for a job, they will not be preferred. They won't be preferred. Even level 2 candidates are not preferred. Level 2 with certain experience will surely be considered, but only level 2 experience, probably not. Probably not. So to answer your question, if you want to get into these roles, which are research driven roles, definitely you should pursue CFA, definitely. But if you want to get into treasury, FP&A, revenue assurance, pricing, these sort of general finance profiles, as a CA, it is definitely achievable. It is very much achievable to get into these roles as a chartered accountant. I hope I'm able to answer your question. Yeah, thank you so much. देखो सेम लिंक में आ जाएगा, ये मीटिंग खत्म हो जाएगा, सेम लिंक में फिर से आ जाएगा, ये एक्चुअली खत्म हो जाएगा। अच्छा, ओके, हाँ हाँ फिर जाए, ओके, ठीक है। हाँ, फिर से